পার বিঘায় 60,000 70,000 টাকা হচ্ছে। আর বেলে দোআঁশ মাটি ছাড়াও গাজর চাষ হয় না? না, এঁটেল মাটিতে গাজর ভালো হয়। যখন এক এক দিনে 1 একর, हार्डली 1.5 एकड़, এর বেশি না। ये मशीन का वेट है 11 किलो। जो बॉक्स है इसको हटा देंगे। আপনিও শুনলে অবাক হবেন, এই নদিয়াতে 100 একরের উপরে গাজর চাষ হচ্ছে। হ্যাঁ, আমি যে মাঠে দাঁড়িয়ে রয়েছি এই মাঠটায় 100 একরের বেশি জমিতে গাজর চাষ হচ্ছে। আপনি গাজর চাষ করছেন? হ্যাঁ, আপনার খরচ বাঁচিয়ে দেবে এই মেশিনটা। আপনার গাজর চাষ করতে গিয়ে মোটামুটি একরে প্রায় 50 থেকে 60,000 টাকা খরচ হয়, কিন্তু এই মেশিনটি যদি আপনার কাছে থাকে মোটামুটি 30 থেকে 35,000 টাকা খরচ হবে। এই মেশিন আমি আজকে প্রথম ট্রাই করলাম, এটা কোনো ব্যাপার নেই, একদম ইজিলি যে কোনো মানুষ চালাতে পারবে, যে কোনো মানুষ। হ্যাঁ, তাহলে টাকা 1 বছর একদম 14 বছরের টাকা উঠে। আর যা লেবারের সমস্যা, হ্যাঁ, তাতে 14,000 টাকা কোনো ব্যাপারই না, 1 বছরে দাদা বলছে উঠে যাবে। এই মেশিনটা গাজর চাষের জন্য খুব প্রয়োজনীয়। এই মেশিনটি সিড মেশিন। আপনি খুব সহজেই গাজরের সিড আপনি না বুনে ম্যানুয়ালি না ছড়িয়ে সরাসরি লাগাতে পারেন। আপনাকে নিড়িয়ে এক্সট্রা গাজর আর তুলতে হবে না, কারণ আপনি নির্দিষ্ট দূরত্বেই কিন্তু গাজরের বীজ লাগাতে পারেন। এতে কি কি চাষির খরচ বাঁচছে সেটাই জানাবো। This channel does not promote any violent, harmful or illegal activities. All content provided by this channel is meant for an educational purpose only. দাদা নমস্কার, কেমন আছো? নমস্কার, ভালো আছি। আমরা বর্তমানে রয়েছি চাকদার নিমতলা বাজার। এখানে মোটামুটি আপনি যেটা বললেন প্রায় 100 একরের মতন এই মাঠটায় চাষ হয় গাজর। আর গাজরের একটা ভালো সুন্দর লাগানোর জন্য একটা গ্যাজেট আজকে রিভিউ করব আপনাদের মাঠে। আপনার পরিচয় যদি আমাদের কৃষক বন্ধুদের দেন খুব ভালো হয়। আমার নাম কৌশিক মণ্ডল, জেলা নদিয়া, আমাদের গ্রাম সাতশমুলিয়া, নিমতলা বাজার, থানা হরিণঘাটা। এই যে গাজর লাগানো একটা প্রচুর খরচ রয়েছে, যেটার জন্য কিন্তু আজকে এই গ্যাজেটটা আপনাদের রিভিউ করে দেখানো হচ্ছে। একদম, যে গাজরের যে সমস্যাগুলো হয়, যে প্রচুর পরিমাণে বীজ লাগে, আবার সেই বীজটাকে যে গাছ একটু হয়ে যায় ফাঁকা করার জন্য লেবার লাগে নেড়ানোর জন্য। একদম। তো আমি কেন বেশি চারা লাগাবো সেই প্রশ্নের উত্তর এখনো পর্যন্ত কৃষকরা খুঁজে পায়নি। না, যে আজকে ঘন না লাগালে হ্যাঁ পরে সিড কম পড়ে যায়, মানে ম্যানুয়ালি যে জিনিসটা হয় হাতে ছড়িয়ে ছড়িয়ে, সেখানে কিন্তু সম্ভব না। না, আস্তে আস্তে লেবারও কম পাওয়া যাবে। হ্যাঁ, লেবারের সমস্যা একটা বিশাল সমস্যা। সেই সমস্যার সমাধান কি মেশিনটা করতে পারবে? একদম 100%। এবার একটু ডিটেলস জানতে চাইবো যে এই এলাকায় মোটামুটি কত বিঘা চাষ হয়? আমি যে ডেটাটা পেয়েছি এই মাঠটাই চাষ হয় শুধু 100 একর। 100 একর, একদম। সবাই গাজর চাষ করছে, সবাই মোটামুটি গাজর চাষ করছে। এই টোটাল মাঠটা দেখতে পাচ্ছি, টোটালটাই গাজর চাষ বেশিরভাগ। হ্যাঁ। এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এই গাজরটা মোটামুটি একটু ডিটেলস জানি, তারপরে আমরা মেশিনে যাচ্ছি। এই গাজরটা বিঘাপতি বা একরে কত কেজি করে হয় বা কত কুইন্টাল হারভেস্ট হয়? আমার একরে হচ্ছে তোমার যে 60 কুইন্টাল পার বিঘায় 60 কুইন্টাল, ঠিক আছে। টোটাল হচ্ছে তোমার 180 কুইন্টাল এক একরে 180 কুইন্টাল। 180 কুইন্টাল একরে হচ্ছে, মানে কিরম রেট যায় এখন? কিরম রেট শুরু হয়েছে এখন? 60,000 70,000 প্রোডাকশন অনুযায়ী। 60,000 70,000 কি পার বিঘায় 60,000 70,000 টাকা হচ্ছে এখন। এই যে এই চাষটা করতে গেলে একটা লেবারের সমস্যা, বীজের রয়েছে, টোটালি খরচ কত হচ্ছে বিঘায়? টোটালি 17,000 18,000। মানে আপনি বলতে চাইছেন যে একরে বিঘায় 18, মানে 1,80,000 টাকা আমি একরে পাচ্ছি। হ্যাঁ, আর মোটামুটি খরচ প্রায় 60,000 টাকা। একরে পার একর। মানে যদি আমরা ধরি লেবার কস্ট, এটা প্রফিট যদি আমরা ধরি 1,20,000 টাকা একরে প্রফিট থাকছে। একদম।
যদি এই মেশিনটা আপনি যে মেশিনটা আমরা দেখাচ্ছিলাম বা কোম্পানি থেকে এসে দেখাচ্ছিল, এই মেশিনটা নিলে মোটামুটি কত টাকা সেভিংস হতে পারে একরে? একরে মিনিমাম 30,000, মানে লেবার কস্ট 50% চলে আসবে। 50% একদম। চলুন একটু মেশিনটা দেখি এবং আপনিও চালান, কি প্রফিট দেখছেন। দাদা মেশিন চালিয়ে কি বুঝছো? মেশিন ইজি আছে, ইজি আছে, ইজি আছে। মানে যদি একটু মাটি ভালো হয়, বেলে দোআঁশ মাটি হয়, এটাই বেলে আহ, মাটি একদম, এই মাটিতে চালাতে কোনো রকম সমস্যা কোনো নেই। সমস্যা নেই। আর বেলে দোআঁশ মাটি ছাড়াও গাজর চাষ হয় না, না, এঁটেল মাটিতে গাজর ভালো হয়। ভালো হয় না। তো এবার ব্যাপার হচ্ছে যে এই মাটিতে যদি এই মেশিন আপনারা পান বা এই মেশিন একটা করে কৃষকরা কিনে নেয়, তাহলে কোনো সমস্যা হয় না, প্রচুর সুবিধা আছে। মোটামুটি একদিনে বলছি যে 2 একর বা 6 বিঘে 6 বিঘে হুম। চাষ করা কোনো ব্যাপার না। কোনো ব্যাপার না। তো এক দিনে কতটুকু আপনারা গাজর লাগান যখন? এক দিনে 1 একর, হার্ডলি 1.5 একর, এর বেশি না। যদি এই মেশিন কিনেন 2 একর তো লাগানো কোনো ব্যাপারই না, ইজিলি হবে, ইজিলি হবে। তো কৃষকদের এটাই বলবো যে আপনারা যারা এই ভিডিওটা দেখছেন, যারা গাজর চাষ করছেন পশ্চিমবঙ্গের নানা প্রান্তে, তো এই মেশিন একটা কিনে নেবেন। দাদা মোটামুটি যেটা আইডিয়া আমাদেরকে দিল বা আমাদের দর্শক বন্ধু বা কৃষক বন্ধুদের যা আইডিয়া দিল, যে 50% খরচে চলে আসবে। 50% মতলব একরে প্রায় 30,000 টাকা দাদা বলছে সেভিংস হবে। বীজ তো মোটামুটি কেমন লাগছে? আপনি তো চালাচ্ছেন। বীজ একদম যে জায়গাটায় আমার দরকার সেম জায়গায় আমার পড়ছে, কোনো সমস্যা নেই। মানে নেড়াই ঘাড়াই আর করতে হবে না 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 না, শুধুমাত্র ঘাসটা গাছটা নিরোতে হবে, তাছাড়া নিরোনোর কোনো প্রশ্ন নেই। এবার কতটুকু আছে আপনার? এবার আমার বিঘে 8 আছে। বিঘা 8। গাজর চাষ কত বছর ধরে করছেন? গাজর চাষ মিনিমাম 5 বছর। 5 বছর। এই যে লেবার সমস্যা কতদিন ধরে দেখছেন? লেবার সমস্যা সবসময়। লকডাউনের পর কি বেশি? একদম। লকডাউনের পর একটা লেবারের একটা চাহিদা, এটা বোঝা যাচ্ছে যে লেবার যে এগ্রিকালচার ফিল্ড থেকে লেবার কিন্তু আস্তে আস্তে অন্য সেক্টরে একদম একদম। সেই ক্ষেত্রে ম্যাশিং এর যে কোনো ফিল্ডেই হোক না কেন, ম্যাশিং এর খুব প্রয়োজন একদম। আর যে এই মেশিনটা মোটামুটি কোম্পানি বলছে যে 14,000 টাকার আশপাশ। 14,000 টাকায় যদি কেনে, মোটামুটি কতদিনে টাকা উঠতে পারে? কৃষকরা যেটা ভাবে যে কতদিনে আমার মেশিং এর টাকাটা উঠবে, যার মোটামুটি আমি যেটা হিসাব করলাম যে এই যে মেশিনটা যদি তার 3 বিঘে কি 4 বিঘে বা 2 একর থাকে, 2 একর, হ্যাঁ, তাহলে টাকা 1 বছর একদম 14 বছরে টাকা উঠে যাবে। মোটামুটি যদি 2 একর থাকে, যদি দাদা বলছে এই করে 30,000 টাকা সেভিংস হবে সবকিছু লেবার টেবার দিয়ে এই মেশিন এর জন্য। দাদা তাহলে আপনি কি বলবেন যে আমাদের যারা কৃষক বন্ধু রয়েছে তারা কি এই মেশিনটা নিতে? এই মেশিন আমি আজকে প্রথম ট্রাই করলাম, আমার যেহেতু সিজন শেষ, ঠিক আছে, তা সামনের সিজন থেকে আমি অবশ্যই এই মেশিনটা ব্যবহার করব। মেশিনে ব্যবহার করাও ইজি, কোনো সমস্যা নেই, একদম সিম্পল জিনিস। প্রথমে বেড তৈরি হয়ে যাবে আমার, বেড তৈরি হয়ে গিয়ে তার তৎক্ষণাৎ থেকে আমার বীজ বপন শুরু হয়ে যাবে মেশিনের দিয়ে। এতে কোনো ব্যাপার নেই, একদম ইজিলি যে কোনো মানুষ চালাতে পারবে, যে কোনো মানুষ। মানে 14,000 টাকাটা কোনো ব্যাপার না, না, হ্যাঁ, 14,000 মানুষ চাই সুবিধা, মানুষ চাই সুবিধা। আর যা লেবারের সমস্যা, হ্যাঁ, তাতে 14,000 টাকা কোনো ব্যাপারই না। না। 1 বছরে দাদা বলছে উঠে যাবে। দাদা নমস্কার, ভালো থাকবেন। सर नमस्ते। नमस्ते। आप कैसे हैं? ठीक। ये फूड डॉग जो है ना, ये थोड़ा हमारा जो किसान बंधु है उसको थोड़ा डिटेल से बताए तो अच्छा होगा। ठीक ये है क्या है, ये क्या काम करता है? जी बिल्कुल। तो नमस्कार। हमारा नाम है जॉन जॉर्ज और ये कंपनी का नाम है रोवर इंडिया। हम तमिलनाडु से आ रहे हैं और ये गाजर का बीज डालने वाला मशीन है। तो ये कैसे है कि एक आदमी की वजह से जब आप पुश करके जाते हैं ना, 4 लाइन बीज आपको आराम से एक लाइन लगा के बीज को भी कवर कर देते हैं। तो ये 3 काम मशीन करता है। तो ये मशीन यूज करने में आपको पहला एडवांटेज क्या है कि आपको जो बीज का जो यूसेज है ना, तो आप 1 एकड़ में 2.5 किलो लगभग बीज लगाते हैं जो हाथ में डालते हैं।
इसको आप लगभग 1 किलो आपको सेविंग कर सकते हैं, क्योंकि मशीन में जो आप सेटिंग लगाते हैं ना, उसी सेटिंग पे पूरा फार्म को आपको चला सकते हैं। तो उसको बहुत दूर या बहुत पास में बीज नहीं गिरेगा, एक ही सेटिंग में गिरेगा। तो वो एक एडवांटेज है। सेकंड वाला एडवांटेज क्या है कि एक आदमी के वजह से आपको पूरा खेती कर सकते हैं। समझिए आपको 4-5 लोग के वजह से एक एकड़ एक दिन के टाइम लगा के नहीं चलना है, एक ही आदमी से एक ही मशीन में चला सकते हैं। और तीसरा एडवांटेज क्या है कि आप जब हाथ में बीज लगाते हैं और इसके बाद 30 दिन में आपको ये उठाना पड़ता है ना, जो बीज आसपास में है, हाँ। तो उसका काम बिल्कुल का बिल्कुल नहीं है, क्योंकि आप जब मशीन में एक ही सेटिंग में लगाते हैं तो कैरेट का जो डिस्टेंस है ना, वो पूरा का पूरा 3 सेंटीमीटर से 5-6 सेंटीमीटर तक आपको कैसे भी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। तो पूरा का एक पूरा बात है, ये जो मशीन का प्राइस कितना है? ये मशीन का प्राइस है 14,000 यानी 14,000। तो ये मिलता है तमिलनाडु में। आप हम यहाँ डीलर भी ढूंढ रहे हैं, तो आप यहाँ भी मिल सकते हैं। तो और ये हम बनाते हैं, हम रीसेलर या डीलर या डिस्ट्रीब्यूटर नहीं है, हम एक मैन्युफैक्चरर है। तो हमें स्पेयर्स और सर्विस सब दिला सकते हैं। हमारा वेस्ट बंगाल में कोई कोई जगह एक गाजर का खेती होता है, ठीक है। तो कॉस्टली ज्यादा होता है तो नहीं चलेगा ये मशीन। पहले रिव्यू ऐसा जो इधर है, नदिया का चकदा का आसपास है, इधर जो खेती करना वो बीघा का मतलब चलता है। बीघा। एकड़ में वो जो सीड लगता है 2 kg का ज्यादा लगता है, 2.5 kg। 2.5 kg का ज्यादा लगता है। ये जो मशीन है अब बोलता है 1 kg के आसपास जो बेनिफिट रहता है वो थोड़ा मेरा किशन बंधु को बताए तो जी, अच्छा होगा। जी जी बिल्कुल। सीड का बेनिफिट है और कौन कौन विषय में बेनिफिट होता है? जी बिल्कुल। तो समझिए जी, आप गाजर जो हाथ में डालते हैं, आपको 2.5 किलो आपको यूज कर सकते हैं। तो जब मशीन में डालेंगे लगभग 1 या 1.5 किलो, 1 to 1.5 किलो ही आपको चाहिए। तो समझिए आपको 1 एकड़ में आपको 1 किलो का बीज आपको सेविंग हो जाता है। तो 1 किलो का बीज का रेट जब आप चेक करने के 200 या 2,500 आपको सेविंग हो जाता है 1 एकड़ में ही। और समझिए इसका बाद सेकंड सेविंग है, तो जब हम 30 दिन में आपको ये गाजर उठाते हैं ना, उसमें जो लेबर का जो कॉस्ट आता है और टाइम आता है, वो भी आपको सेविंग कर सकता है। ये दोनों बढ़िया सेविंग होता है मशीन में। तो क्या है कि मशीन में 2 एडवांटेज आते हैं सर। पहला, सीड का जो बीज का जो यूज होता है ना, आपको लगभग 2,000 का सेविंग हो सकता है मशीन में। और जो दूसरा वाला एडवांटेज क्या है कि जब हम पुलिंग करते हैं ना, थिनिंग, तो थिनिंग में आपको लगभग 1 एकड़ में 4,000 का खर्चा होता है, वो भी आपको पूरा का पूरा मिनिमाइज कर सकते हैं। ये जो मशीन का वेट कितना है? ये मशीन का वेट है 11 किलो। 11 किलो। और सीड डाल के? सीड डाल के लगभग 1 किलो ज्यादा हो सकते हैं। चनाले के लिए जो लेबर जाता है एकड़ में कितना लगेगा? तो 1 एकड़ आपको लगभग 4 घंटे में कर सकते हैं। 1 एकड़ 4 घंटा एक आदमी। एक आदमी एक दिन 2 एकड़ आराम से हो जाएगा। सर ये जो लोकल जो फार्मर को पास लेके आया ट्रायल के लिए, वो फार्मर कैसा रिव्यू देता है? ठीक है। तो हम क्या करते हैं, तो जब मशीन हम बेचते हैं ना, समझिए आप हम यहाँ डीलर से भी बेच दो या तमिलनाडु से भी आते, तो सिर्फ आपको हैंडल फिटमेंट करने का आवश्यकता है। और उसके लिए हम सभी टूल्स भी मशीन के साथ देते हैं, और इसका एक जो वीडियो है हम व्हाट्सएप में उनको भेज देते हैं। तो वो हिंदी में भी आता है, बंगाली में भी आता है, आपका लोकल लैंग्वेज कैसे हो वो लैंग्वेज में आता है। तो ये कैसे है कि हम पहला जो बॉक्स है इसको हटा देंगे। तो हटा के हम बीज को डाल देंगे। तो पहला इसी बॉक्स में आपको आधा बॉक्स फिल कर सकते हैं। फिल करने के बाद आपको ये ब्रश का जो एडजस्टमेंट है ना, जो एडजस्टमेंट आपको आप टाइट कर दिया तो ब्रश ऊपर आ जाता है, आप लूज कर दिया तो ब्रश नीचे जाता है, वो समझ में रखिए। ब्रश का काम क्या है? ब्रश का काम क्या है कि जो बीज ज्यादा कम गिरना है तो उसको ब्रश में आपको एडजस्टमेंट कर सकते हैं। 1 बीज 2 बीज नहीं, तो समझिए 1 पैकेट ज्यादा जा रहा है, एक बीज थोड़ा आधा किलो ज्यादा जा रहे हैं, आपको थोड़ा कम करना है। आपको देख पाएंगे कि ये जो बॉक्स में कैसे कम हो रहा है, जब आप चलाते हैं ना, एक बॉक्स में ज्यादा कम हो रहे हैं, कम हो रहे हैं ना, तो उसकी वजह से आपको ब्रश को एडजस्टमेंट कर सकते हैं। लाइन जो जो लाइन एक बीज से एक बीज का डिस्टेंस मेंटेन के लिए आपको ये ब्रश को जो है ना, आपको समझिए आपको ज्यादा बीज गिर रहे हैं तो ब्रश को आसपास रखना है। आसपास रखने के लिए आपको ब्रश को लूज करना पड़ता है। और जो समझिए आपको ब्रश का जो जब भी कम गिर रहा है तो थोड़ा ज्यादा करना है, तो टाइट करने की वजह से ब्रश ऊपर आ जाता है। और जो लाइन का डिस्टेंस तो लाइन का डिस्टेंस क्या है कि
हमें ये गियर बॉक्स है, तो हम गियर बॉक्स के वजह से समझिए आपको यहाँ एक गियर है और यहाँ एक गियर है, इसमें 32 लिखा है और इसमें 17। तो समझिए आपको ये जो बीच टू बीच डिस्टेंस है ना, उसको एडजस्टमेंट करना चाहिए, तो आपको ये अलग से अलग सेटिंग कर सकते हैं। और हमारा पास इतना सेटिंग्स है, तो हमें 3 सेंटीमीटर से 11 सेंटीमीटर तक 6 सेटिंग है वो लाइन का सीट टू सीट डिस्टेंस। सीड से सीड यही रहेगा। हाँ, ये डिस्टेंस हमें एडजस्टमेंट कर सकते हैं सर, लेकिन ये रोड टू रोड डिस्टेंस कहते हैं ना, एक लाइन और दूसरा लाइन का डिस्टेंस वो फिक्स्ड है 4 इंच पे, क्योंकि वो ही गाजर को हमें चाहिए। तो समझिए आपको मशीन का कुछ नट बोल्ट या कुछ स्पेयर्स कुछ मिलना चाहिए, तो वो सब आपको आपका लोकल डीलर के शॉप में आपको मिला सकते हैं, क्योंकि हम उसको सभी स्टॉक देंगे। और समझिए ये मशीन को 1 साल का वारंटी हम देते हैं कंपनी की वजह से, जो मैन्युफैक्चरिंग डिफेक्ट हुआ है, तो हम कुछ पूछताछ के बिना आपको पूरा का पूरा मशीन चेंज कर देंगे। तो ये 1 साल का वारंटी के साथ आता है। वारंटी है जी। जो वारंटी है, वारंटी का साथ साथ टूल्स, हाँ, क्या क्या टूल्स है? तो हमारा जो मैं बताया ना, तो मशीन का ये जो हैंडल फिट करना है ना, इस हैंडल फिट करने के लिए हमारा पास 2 स्पैनर हम देते हैं, जो 13 साइज का है और 10 वाला साइज का। एक गियर का है। हाँ, ये गियर एक्स्ट्रा गियर है, जो समझे आपको जो डिस्टेंस बताने हैं ना, तो बदलने का लिए गियर है। और ये चेन है, 2 एक्स्ट्रा चेन है, वो फ्री आते हैं स्पेयर में। और जो ये सब पिन्स आता है ना, ये जब ये आर पिन जो गियर लॉक करने के लिए आते हैं, वो सब 2 एक्स्ट्रा है। और ये आपको इंस्ट्रक्शन मैनुअल है, यानी प्रोडक्ट मैनुअल। जो आपको कुछ डाउट है तो उसको इसमें पिक्चर्स हैं, तो आपको पिक्चर्स के वजह से आपको हैंडल कैसे फिट करना है, कैसे बांधना है, सभी इसमें लिखा हुआ है। ये पूरा का पूरा किट मशीन के साथ दिया। तो हमारा कंपनी तमिलनाडु से है, कोयम्बतूर से। तो हमारा कंपनी का नाम है रोवर इंडिया। और आपको जो नंबर में आपको डिटेल्स भेजना है या आपको कुछ डाउट है और मशीन के बारे में बताने हैं, तो 8838853987, यानी 8838853987। आपको डिस्क्रिप्शन में भी मिलेगा और ये वीडियो के नीचे भी मिलेगा, ये हमारा नंबर है। और हमारा वेबसाइट है www.roverindia.com, www.roverindia.com। और हमारा जो मशीन का नया मशीन का डिटेल्स और उसका सब वीडियो, सेटिंग का वीडियो सब हमारा यूट्यूब पे भी है, हमारा वेबसाइट में भी है। ठीक, थैंक यू सर।